بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آپ تمام دیکھنے والوں کو عیسوی سال 2025 کے یوم کا پہلا سورج دیکھنا مبارک ہو۔ اللہ عز و جل سے میری دعا ہے کہ اللہ کریم اس سال نو کو ہماری قومی، انفرادی، اجتماعی زندگی کے لیے ترقی، کامیابی اور خوشحالی کا سال ثابت ہو۔ گزشتہ روز کوئٹہ سے زمینی راستے افغانستان آنے کے لیے صوبائی سیکریٹریٹ کے سامنے گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاجی دھرنا بھی دیکھا، جہاں سخت سردی کے باوجود 14 طبی اور نیم طبی تنظیموں کے اتحاد کا یہ دھرنا انتہائی منظم اور پرامن تھا۔ اس دھرنے کے آرگنائزر جمال شاہ کاکڑ سے میری بات ہوئی اور انہوں نے اس الائنس اور اپنے مطالبات کے حوالے سے مجھے کچھ تفصیل بتائی۔ انشاءاللہ پاکستان واپس آتے ہوئے ان سے دوبارہ ملاقات کے بعد گرینڈ ہیلتھ الائنس کا مرکزی نقطہ نگاہ کیا ہے، اس حوالے سے میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ آپ اس دھرنے کی ایک جھلک ہماری اس اسکرین پر بھی ملاحظہ فرما لیں۔ جو احتجاج ہے وہ آج تقریباً 35واں دن ہے۔ جس طرح یہاں سے کابینہ سے ایک بل پاس کیے تھے کہ ہم بلوچستان کے جتنے بھی اسپتال ہیں ان کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے جائیں گے اور جتنے بھی تعیناتی ہوں گے وہ ہم کنٹریکٹ بنیادوں پر کر لیں گے، جن کو ہم جتنے بھی ہمارے گرینڈ ہیلتھ الائنس میں جتنے بھی تنظیم ہے، 16 تنظیم ہے جو سارے منسلک ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے، ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو یہ دشمن پالیسی یا ملازم دشمن پالیسی ہے ہم ان کے خلاف ایک بھرپور احتجاجی مظاہرہ کر لیں گے۔ ہم اس میدان میں نجکاری کے خلاف نکلے ہیں، اس صوبے کے ساتھ یہ سلوک گزشتہ 76 سالوں سے روا رکھا گیا ہے اور اس صوبے میں ہر شعبہ زندگی مکمل زبوالی کی جانب گامزن ہے، تباہ ہو چکا ہے۔ صرف ہیلتھ کا شعبہ نہیں، یا ایجوکیشن کا شعبہ جو ہے یا مکمل تباہ ہو چکا ہے۔ یہاں پر اگر آپ کاروبار دیکھیں، کاروبار ختم ہو چکا ہے، روزگار ختم ہو چکا ہے، اور صوبے میں جو چند سرکاری اسپتال ہے جو غریب عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں، اب ان اسپتالوں کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے مسلسل منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ میں اس وقت آپ سے افغانستان کے صوبے قندھار کے صوبائی دارالحکومت سے مخاطب ہوں، جہاں بہت سخت سردی ہونے کے ساتھ ساتھ باران رحمت بھی برس رہی ہے، اور میرا یہ دورہ بلوچستان، افغانستان صحت کی معلومات، آگاہی، مطالعاتی اور سیاحتی دورہ ہے۔ ناظرین کرام، جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ جو احباب پروگرام دیکھ رہے ہیں انہیں اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیں۔
नाजरीन कराम, आज की खुसूसी रिपोर्ट की मजीद तफसील विफाकी महकमा सेहत बलूचिस्तान और सिंध के सरकारी सेहत की तफसीलात पर मुश्तमिल है। विफाकी महकमा सेहत के खबर के अंदर की खबर यह है कि विफाकी सेक्रेटरी सेहत नदीम महबूब जान छुड़ाने के लिए और जॉइंट सेक्रेटरी लीगल इकबाल सत्ती फरार होने के लिए तैयार है। उन्होंने कब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त दायर कर दी है। बताया जाता है कि महकमा सेहत सिंध के साबिक एडिशनल सेक्रेटरी मौला बख्श शेख की तरह कानून कायदे को खुद साख्ता कवानीन के ज़रिए इस हद तक तब्दील करके रख दिया है कि अब इकबाल सत्ती एहतिसाब के खौफ से कानून से खिलवाड़ का जवाब देने के बजाय राह फरार इख्तियार को ही अपनी आफियत जान रहे हैं, क्योंकि नर्सिंग कौंसिल में होने वाली लाकानूनियत का पेंडोरा बॉक्स अन करीब खुलने के करीब है। जबकि मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई और इत्मीनान भी हुआ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमतें अपने अपने ममालिक से पोलियो के खात्मे के लिए यकसू हैं, और इसका सबूत इन ममालिक के सेहत के सरकारी इदारों और पाकिस्तान के सरहदी ज़िला चमन में और अफगानिस्तान के सरहदी ज़िला बुलदक में बहुत मुतहर्रिक और फ़ाल हैं। बल्कि अफगानिस्तान में दाखिल होते हुए बुलदक इमिग्रेशन से पहले मुझे और मेरे मेज़बान डॉक्टर को पोलियो की खुराक पिलाकर पोलियो कार्ड भी जारी किया गया। जबकि सूबे बलूचिस्तान में 31 दिसंबर से 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है। इनामुल हक सूबाई कोऑर्डिनेटर के मुताबिक इस मुहिम में 26,60,000 से ज़ायद 5 साल के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाए जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। जबकि कोयटा, चमन, लोरालाई, पशीन और जोब के इन 5 अजला की सेवरेज लाइनों में नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट के मुताबिक पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। ख़त्म होने वाले साल 2024 में सबसे ज़्यादा पोलियो केसेस बलूचिस्तान में हुए हैं, जिनकी अब तक की तस्दीक शुदा तादाद 26 है। नाज़रीन कराम, महकमा सेहत सिंध में सेक्रेटरी सेहत रिहान इकबाल बलोच के ऐलान के मुताबिक और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के नारे मस्ताना गुड गवर्नेंस के बावजूद महकमा सेहत में तकरीबन 6 माह होने के बावजूद ताहाल एक भी घोष डॉक्टर तो न पकड़ा जा सका, क्योंकि डीजी हेल्थ समेत किसी भी ज़िले सेहत अफसरान, तदरीसी गैर तदरीसी अस्पतालों के सरबराहान ने सेक्रेटरी सेहत की हिदायत पर कान ही नहीं धरा और अमल ही नहीं किया। लेकिन तमाशा देखें, इसकी आड़ में एक ऐसे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए नए डॉक्टरों की भर्ती का नीलाम घर सजा दिया गया है। इस कमीशन के मुताद्दिद अफसरान, जिनकी तस्वीर आप पहले हमारी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं, इसके अफसरान की मुताद्दिद तादाद नैब जदगान की बताई जाती है, जिसका सबूत आपने ये तस्वीर कमीशन के अफसरान की मुलाहिजा फरमाई, जिसका सबूत मुख्तलिफ महकमों की जानिब से भर्तियों के मुख्तलिफ महकमों के मुतनाज़ केसेस इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समात हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर महकमा सेहत सिंध में 67 भर्तियों का अनोखा मेगा करप्शन का स्कैंडल, जिसमें सीनियर तरीन मुताल्लिका अफसरान बल्कि डायरेक्टर फार्मेसी को भी नज़रअंदाज करके उस जूनियर तरीन ड्रग इंस्पेक्टर गुलाम अली लाखों को कमीशन में नामजद किया गया, जो सर्विस कैरियर में न हाथ के साफ और दामन के पाक होने के रिकॉर्ड से महरूम बताए जाते हैं। लिहाजा हालिया फार्मासिस्ट की भर्तियों में करप्शन के तालाब में तैराकी का जो फन मेला गुलाम अली लाखों ने दिखाया, इसमें गुलाम अली लाखों ने अपने देरीना करम फरमा
एडिशनल सेक्रेटरी सेहत मौला बख्श शेख को भी ले डूबे, जबकि मौला बख्श शेख जो कवानीन में रद्दोबदल करने की मास्टर डिग्री रखने के माहिर बताए जाते हैं, वो इस मेगा करप्शन में पकड़े जाने के अंदेशे में तबादले के पीछे छुप गए हैं। लेकिन शायद उन्हें ये कानून नहीं मालूम कि रिटायर अफसरान भी संगीन बदनवानियों में मुलविस अफसर कानून के अंधे शिकंजे से बच नहीं सकते हैं। ये भी क्या खूब है कि मौला बख्श ने सिंध सर्विसेज अस्पताल कराची में पहले अपने लाडले वहाबुल्ला यूसवानी को रिश्वत के साबित केस के मुलजिम और एंटी करप्शन की मुख्तलिफ तहकीकात में शामिल वहाबुल्ला यूसवानी और सिविल अस्पताल मीरपुर खास के शेर मोहम्मद चानियों, जो उनकी अपनी एटीएम मशीन को तरक्की के मुसद्दिका कानून को बिल्डोज करके साबिक सेक्शन अफसर रियाज अहमद रुख से तरक्की दिलवा कर मज़कूरा सेक्शन अफसर को गायब करके उनकी जगह तौहीन अदालत का खुला केस डॉक्टर असरत खत्री को तायिनात करके दूसरे महकमे के तबादले के पीछे खुद जा छुपे। महकमे सेहत में गुड गवर्नेंस नहीं आएगी, जबकि महकमे सेहत की गवर्नेंस का हाल ये है कि इनके हाथों से खिलाफ कानून अकाउंट्स अफसर बनने वाले वहाबुल्ला यूसवानी सिंध सर्विसेज अस्पताल के डिफेक्टिव एमएस और सिविल सर्जन के पावर्स इंजॉय कर रहे हैं, और हुकूमत सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक बनने वाले या बनवाए जाने वाले एमएस सिविल सर्जन कराची डॉक्टर गुलाम हुसैन बुरोही की हैसियत यूसवानी के हाथों एक चाबी वाले खिलौने की सी है, क्योंकि यूसवानी अपने करीबी लोगों में और पब्लिक में ये दावा करते रहे हैं कि डॉक्टर गुलाम हुसैन बुरोही की तायिनाती उनकी बड़ी कामयाबी है, और फिर वहाबुल्ला यूसवानी, डॉक्टर असद खत्री और मुस्तफ़ा शेख मौला बख्श शेख के फ़ोन पर हज़ारों रुपए की अदविया रीएम्बर्स के बिल्स के अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स वगैरह घर और दफ्तर पहुंचाने का काम खुद ज़ाती तौर पर सर अंजाम देते हैं, जबकि इनकी तायिनाती मौला बख्श शेख ने स्किन डिजीज इंस्टीट्यूट में करके गए हैं। फिर यूसवानी भैंसों के बजाय बैलों से कैसे दूध और मलाई निकाल रहे हैं, इसकी तफसील भी गजब करप्शन की अजब दास्तान यूं है। सर्विसेज अस्पताल का धोबी घाट यूसवानी की छुपी करप्शन का वो खुफिया जरिया बताया जाता है, जिससे डॉक्टर रुबीना बशीर के दौर में अपनी यहाँ होने वाली खिलाफ कानून तरक्की से लेकर ताहाल वो माल बनाने में मसरूफ़ अमल हैं। इस धोबी घाट की दास्तान 3 कम ग्रेड हकीकी भाइयों की एक ही सरकारी अस्पताल में एक ही जगह तायिनाती, फिर गुज़िश्ता 15-20 सालों से इनका ड्यूटी न करना, और अब यूसवानी के खिलाफ कानून नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी बन जाना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सबसे पहले आप हमारी स्क्रीन पर आरिफ धोबी की तस्वीर मुलाहिजा फरमाएं। वक्त ख़त्म हुआ, इस सिलसिले की बकाया तफसीर इंशाअल्लाह जुमे को मुलाहिजा फरमाएं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, करप्शन मुर्दाबाद, अवाम व अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।